राइट चलिए, तो अगर एक बार और परफॉर्मेंस हो जाए तो परफॉर्मेंस आपको 15 मई को दिखाई देगी when you go and watch the film in the theaters. चलिए, थैंक यू सो मच। पर नहीं पहुंच पाए, बट एक बार अंकित तिवारी जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। एंड द राइटर इज मिस कौसर मुनीर, जो कि बहुत अच्छे राइटर हैं। और साथ ही साथ हम जी म्यूजिक का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। फ्रॉम जी म्यूजिक अनुराग बेदी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। So it's a different kind of very realistic movie what we have tried, and unfortunately I should just say this because a lot of people have worked hard on this launch to make our song visuals ready, and unfortunately Fun Cinema couldn't project it. So I'm slightly disappointed that I can't show you that film, and a lot of people worked hard day and night to get that ready, but that is called nothing. So that's it. So what else should I say? All actors are wonderful. Everybody is super performers. They have all told me to tell me this. And director, of course, is the best. So that's nothing else to say. Thank you so much, Mr. V.K. Prakash. Thank you so much. सिनेमास्कोप की कसम, मुझे लगता है मेरा मूवी फुल सुपर हिट जाएगा। ला, क्या बात है। मेरे ख्याल से इसके बाद कुछ बोलने को बचा ही नहीं है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। एक बार लड्डू के लिए जोरदार तालियां प्लीज। यस, यहाँ पर कुछ सिंप्लिसिटी दिखा सके। मेरे लिए सिनेमा वॉज ऑलवेज वेरी सिंपल। आई हैव बिन वर्किंग विद अ कंपनी, आई हैव डन ओवर 100 odd films and I've been making films for last 20 odd years. So for me, simplicity was something which was missing in the whole chain of films. I cannot make films which are complex, complicated. So this was a very, very simple film which I tried making. It's a love story, beautiful music, amazing star cast. And I think the vision was just to make a simple film which will connect to India. thank you so much. With this, we are also really thankful to Mr. V. Subhash, who is here, and thank you so much. Okay, so now let's start the question answer. Well sir, जैसे राजेश सर ने कहा अभी कि ये एक वेरी सिंपलिस्टिक रोमांटिक फिल्म है। एंड जब हम प्यार की बात करते हैं तो बेसिकली प्यार में होता क्या है? प्यार में आप खुशी पाते हो, प्यार में आप गम पाते हो, प्यार में आप अकेले हो जाते हो। सो जो इमोशंस होते हैं प्यार के साथ, आई थिंक हम लोगों ने इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की है। एंड ऑफ कोर्स एंड में क्या होता है और किस मुकाम तक जाके, किस लेवल तक जाके आगम दीवान सैक्रिफाइस करता है, वो तो ऑफ कोर्स आपको 15 तारीख को ही पता चलेगा। Yes, I have to ask that to my producer and to my director. My USP used to be that I'm an NRI. Now this film has changed it completely. It's maybe my USP is, that's my USP. I'm very loud. And this for Maakshay. How do you deal failure and success in your life? Sir, I believe that struggle is a very important part of every man's life. And if you don't struggle, you will not triumph. You will not, if you don't fall, you will not know how to rise. And I believe that given the opportunity, Nishka Daria, from my producer Rajesh Banga and from my director Mr. V.K. Prakash, I believe that struggle is very essential to define a man. And I believe that it's because of my struggle and my fight that I've come this far. Hello, Maybe my USP is versatile. Because हेलो, She just remembered it. आपने इतनी खूबसूरत जोड़ी सिलेक्ट की है, इसका सिलेक्शन कैसे किया आपने? और लोकेशन के बारे में बताइए। म्यूजिक बड़ा अच्छा दिया है इस फिल्म का, सब कुछ अच्छा है, लव स्टोरी है, अच्छी बात है। थोड़ा इनका सिलेक्शन के बारे में बताइए। Sir, लोकेशन ऑफ द फिल्म वॉज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में शूट किया। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सिंपल फिल्म बनाने का मन था, तो मैं काफ़ी जगह गया, महाक्षय को लेके, एवलिन को लेके, अपने डायरेक्टर साहब को लेके। हमको लगा कि जो छोटे टाउन है वहाँ पर आज भी असली इंडिया बसता है। कहीं ना कहीं हम लोग डेविएट हो चुके हैं। बॉम्बे में, दिल्ली में, बड़े शहरों में हम लोग मल्टी कल्चर में आ चुके हैं। तो हम लोगों ने हिमाचल ढूंढा जहाँ पर आज भी नेचर की प्योरिटी थी, जहाँ पर आज भी बड़ी सच्चाई थी।
तो वहाँ पर लेके गए। इन दोनों को ढूंढने के लिए एवलिन एंड मीमो दोनों को मैं जानता था। जब ये स्टोरी मेरे पास आई तो मेरे को लगा कि एवलिन रहती जर्मनी में ज़रूर है, बट बहुत छोटे टाउन की एक लड़की है, एंड कहीं ना कहीं ये भी एक स्मॉल टाउन गर्ल थी फिल्म में लवलीन। तो एवलिन को जब मैंने स्टोरी सुनाई तो कनेक्ट करा बहुत अच्छा इसने, मीमो ने बहुत अच्छा कनेक्ट किया। देन आई गॉट माई डायरेक्टर टू चूज, सो आई थिंक ही विल ऑल्सो आंसर दैट कि क्या इनको नज़र आया, तो इन्होंने इसी पे फाइनल किया इन दोनों को। Actually, what happened is like I met Midunda. Actually, Midunda's I've done earlier film with worked with Midunda, and I'm very close to their family. And when they actually Rajesh ji and Midunda got in touch with me to direct this film, so I heard the script and I liked the script. And then actually Mahesh Memo also I know him from earlier time, like from Firkabi time. So we all know each other, all friends. Basically, I believe that when all friends get together and make a film, it'll speak more positive. And then actually, what happened is Evelyn came in, like in the sense he just Rajesh told me, because Rajesh knows much better the industry and much better. So casting, all the credit goes to Rajesh ji, and he said Evelyn, and then I suddenly Googled. And I saw Evelyn, and then I spoke to her, and then I came here and we met, and then we took a call. And then actually what we did is we did almost 10 to 15 days of workshop between both of them to develop the chemistry between them, and also to make it more improvisational skill, to more acting exercises we have tried actually. So almost 10 to 15 days we did a workshop, and then we got them into the shoot. The workshop Thank you, we sir. had to do. Thank you so much, sir. Thank you. The workshop we had to do because he googled me and all he found was pani pani, and he was like, Indian girl. What is workshop? We have to do a workshop. अच्छा No, मीमो, but one thing. फिल्म का जो टाइटल है वो क्यों रखा गया इश्कदारियाँ, उसके बारे में बताइए, और आपका कैरेक्टर मूवी में। वेल सर, कैरेक्टर के बारे में तो मैं आपको बता दूंगा, वो जो टाइटल है आई थिंक मेरे प्रोड्यूसर आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। सर टाइटल क्या था कि इश्क की रिश्तेदारी इज़ इश्केदारी। कौसर मुनीर जी बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत खूबसूरत लिख रही हैं, वो बहुत अच्छे गाने कर रहे हैं, सुनो ना संगे मरमर, इशकज़ादे। सो जब ये फिल्म प्लान करी तो मेरे को था कि कौसर कुछ एक अच्छा कोई टाइटल, अच्छा कोई नाम दे, एंड शी माइट गिव मी समथिंग विच इज़ डिफरेंट। सो शी केम अप विद दिस वर्ड कॉल्ड इश्केदारियाँ। तो पहले मैंने पूछा क्या मतलब हुआ, तो कहती इश्क की रिश्तेदारियाँ, बिकॉज फिल्म में इतना बड़ा सेक्रीफाइस है। एक रिलेशनशिप में दोस्त के लिए क्या सेक्रीफाइस करता है, फादर सन के लिए क्या करता है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन लेवल ऑफ रिश्तेदारी, जहाँ पर जब ये नाम आया तो वी ऑल लव्ड इट एंड वी कॉइंड द नेम इश्केदारी। और कैरेक्टर के बारे में तो मेरे कैरेक्टर का नाम है आगम दीवान। ही इज़ अ सेल्फ मेड मिलियनर। वो बिलीव करता है कि आप यू कैन ओनली राइज टू द टॉप अगर आप हार्ड वर्क करो, एंड बट जितना वो अमीर है उतना ही इज़ वेरी क्वाइट, बहुत ही हम्बल है, ही कीप्स टू हिमसेल्फ। और कैसे हालात उससे लवलीन से मिलवाते हैं और फिर उसकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। बेसिकली दैट्स द इंटायर कैरेक्टर आर्क ऑफ आगम दीवान। आपको फिल्म में मिलना बहुत मुश्किल हो गई थी लगातार फ्लॉप्स के बाद, तो इस फिल्म में ये फिल्म मिलने के लिए कितनी मशक्क़त आपको करनी पड़ी? वेल टू बी ऑनेस्ट, जब राजेश सर ये फिल्म के साथ मेरे पास आए तो आई डिसाइडेड कि मैं एक लेवल तक पहुंच गया मेरे करियर में, वेयर डेफिनेटली आई वांट टू डू फिल्म्स, बट आई वांट टू डू द राइट फिल्म्स, आई वांट टू डू गुड फिल्म्स। एंड जैसे आप देख रहे हैं हमारी जो टेक्निकल क्रू है, इट्स लाइक इम्पैकेबल, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड जो कहानी थी इस फिल्म की, आई थिंक इट वॉज द सिंप्लिसिटी विच कॉट मी। एंड आई बिलीव के आज के ज़माने में जो हम लोग जैसे कहते हैं द व्हाट्सएप जनरेशन, जहाँ पर आप स्माइली भेज के या फिर एक हार्ट भेज के यू कैन प्रोक्लेम योर लव, आई बिलीव के हमारी फिल्म में वी हैव गॉन बैक टू द सिंप्लिसिटी। एंड इवन फॉर मी एज एन एक्टर, आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस फिल्म, आई वॉन्टेड टू गिव दिस फिल्म अ शॉट। और फिर ऑफकोर्स वीकेपी सर आए, जैसे उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने वर्कशॉप्स किए, वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल साउंड ट्रैक जैसे अभी आपने सुना है, शॉट इन वंडरफुल प्लेसेस। सो इट वॉज एन इंटायर पैकेज फॉर मी, एंड आई बिलीव के as I told you earlier that struggle is very important and you gotta keep on trying and win their hearts all over again. कह सकते हैं रोमांटिक फिल्म आप इसमें एक्सप्लोर कर चुके हैं, मतलब अच्छा कर पाएंगे एज ए रोमांटिक हीरो? देखिए, अच्छा कर पाऊंगा बुरा कर पाऊंगा, डेफिनेटली दैट इज़ अप टू द फैंस एंड द ऑडियंस, बट एज एन एक्टर आई एम वेरी कंटेंटेड विद इश्कदारिया, बिकॉज वीकेपी सर ने जैसे हम लोग को बिठा के मुझे, मोहित, एवलिन, कविन सबको मिला के जो वर्कशॉप्स करवाई, जो लोकेशंस में हम लोगों ने शूट किया, जो एटमॉस्फेयर था,
I think it's taken on the best in all of us. जब आप देखेंगे फिल्म, I think you will highly agree with us. प्रकाश जी, आपने मिथुन दा के साथ काम किया, मिथुन दा के साथ काम किया, मेमो के साथ काम किया. How different they both are in working styles and. No, actually, it's like I'll rate like say if I say it, Mithun Da is a very intense actor, completely intense, and that actor with par excellence and experience. And Memo is an actor like impulsive, improvisational skill he has. At the same time, I'm sure that you will see a different Memo in this film. I'm very sure about it. Once you see it, we worked on his look and we worked on everything. And I just thought he's an internal actor. So there is a lot of external acting and internal acting it's concerned. So I think he's more into internal performances. So we're completely getting into the character as an internal inside of the character. What? Trade. I mean, what trade common. I think both are I think different actors. Every actor is completely different. Maybe father, son, brother, but every actor has an individuality in performing. So I think he has his own style, and I think that is why we did workshop, to understand, how we should approach the whole thing, all that. Hello, nowadays there's a kissing scene in every film, every Bollywood film. Is there a kissing scene in this film? No, we didn't give a chance to them because we are always jealous. Directors won't give, I won't give. Why should actors only get that privilege? What about me? Hello, Prakash ji, do you think that it will be turned as a Ashiki 2? No, we didn't make the film thinking of some other film. This is an independent film, this is an individual film. So it's just like that. There's nothing before or after we thought about the film. It's a film by itself. I play the character of Loveleen. She's a school teacher in a small town in Himachal. She has only one goal in life, which is to run her school, which was her grandfather's dream, to run the school for less fortunate children. So for that, she always has to go around and get donations. She has to make sure that their life is settled. She's a very selfless person. For her, these kids and her family, her grandmother, comes first, and she only lives to take care of them. And one day, Agam comes into her life, and she thinks he's a new school teacher in her school. So that is her equation with him, and he becomes her best friend also in some sorts. And when he asks her, what do you want in life? She actually realizes that one thing she doesn't have, which is being settled with a husband. And of course, she realizes at this moment also that there is this boy in her life who has been there for some time now. He's really cute and he's very settled. So she says, Arjun. And that's my character. राजेश जी, since music इतना बढ़िया दिया आपकी फिल्म में, तो हम चाहते हैं जयदेव जी भी स्टेज पे आएं और कुछ अपना बायोडाटा बताएं हमें. जयदेव जी, कुमार जी प्लीज कम. कुमार जी प्लीज. सी म्यूजिक के पीछे बहुत बड़ा हाथ है कुमार जी का, जयदेव जी का. कुछ शेयर कीजिए कुछ अपना एक्सपीरियंस. कुमार जी इज वन ऑफ द बिगेस्ट राइटर्स वी हैव इन द कंट्री. कुमार जी प्लीज कम. कंपोजिशंस के बारे में किस हिसाब से किया आपने, क्या सोच कर किया है? कुमार जी इधर आओ यार. This film started with राजेश जी. मैं अपने पंजाबी गाने एज यूजुअल बना रहा था और बनाते बनाते राह में ये मिल गए और बोले कि इस बार पंजाबी नहीं, आप एक हिंदी गाना बनाएंगे. तो पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि कैसे बनाएंगे. देन कुमार जी आए रात को 12 बजे, एज यूजुअल 12 बजे आते हैं सेटिंग पे. ये रात के 12 बजे आए और कहते हैं अभी 4 लाइनें दूंगा और अभी एक और सेटिंग पे जा रहा हूँ मैं. तो रात के 12 बजे इन्होंने 4 लाइनें दी मुझे. आंसुओं ने नज़र में जगह बनाई, जुदा वाला गाना. और रात के 1:30 बजे वो गाना हमने बना लिया था. और 1:30 बजे आई कॉल राजेश जी कि आप जागिए. और 1:30 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक इनकी गाड़ी में गाना सुनाया. और देन अगले दिन मिथुन दा को सुनाया. सब ने टीम ने सुना और ऐसे पहला गाना हमारा बना. फिल्म का नाम इश्केदारियाँ, बट इससे पहले पारी से हमारी यारियाँ हैं. तो ये फैमिली प्रोजेक्ट है हमारा. हम ऐसे जैसे प्रोफेशनल लिरिसिस्ट की तरह नहीं जुड़ा इस प्रोजेक्ट से मैं.
और इसमें 2 गीत हैं, दस दे बे रब्बा एंड जुदा। जयदेव कुमार जी मेलोडी तो ज़बरदस्त बनाई इस गाने की। मैं यूं ही रैंडमली लाइंस फेंक के गया था पाजी के पास, कोई दिमाग में आइडिया नहीं कि गाना बनाना रोमांटिक, तो मैंने 2 लाइन दी। पाजी ने रात को मुझे 1 बजे मेल किया गाना करके कि आप सुन लो। तो मैंने गाड़ी में सुना, मुझे लगा पाजी आपने काम कर दिया गाने का पिक्चर के साथ। तो मैं सबको ऑल दी बेस्ट बोलता हूँ और कॉन्ग्रेचुलेशन। आज म्यूज़िक रिलीज था राजेश पाजी से, पहले हमारी यारियाँ हैं, उसके बाद आपसे इश्केदारियाँ भी शुरू हो गई हैं। थैंक यू वेरी मच। मोहित भाई, आपको ये फिल्म कैसे मिली? हाय, एक्चुअली मैंने ऑडिशन दिया था, तो ऑडिशन के बाद कॉल आया कि सब मिलना चाहते हैं। आई गॉट सिलेक्टेड। अच्छा, कैरेक्टर मोहित जी, कैरेक्टर क्या है आपका इस फिल्म? हाँ, मेरा कैरेक्टर अर्जुन है, मैं सिंगर प्ले कर रहा हूँ इसमें। और लाइक ही वांट्स टू रीच हायर इन हिज लाइफ, वांट्स टू मेक बिग इन म्यूजिक इंडस्ट्री एंड या लवली इन्स लव इंटरेस्ट। उसके प्रोसेस में अपने पिता की कितनी हेल्प लेते हैं कैरेक्टर में घुसने के लिए? वेल, कैरेक्टर में घुसने के लिए तो डेफिनेटली जो डायरेक्टर होते हैं, आई बिलीव दैट एन एक्टर शुड सरेंडर टू हिज डायरेक्टर। और जब सिलेक्शन प्रोसेस होता है, आई थिंक डैड ने वेरी क्लियरली मुझे बता दिया है कि दिस इज़ योर ओन जर्नी, तुम्हें खुद करना है, चाहे सही हो चाहे गलत हो। एंड आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू इफ़ यू नीड माई एडवाइस। ऐसा नहीं है कि हर फिल्म जो आती है मैं उनको स्क्रिप्ट पढ़ाता हूँ, सुनते हो, फिर वो अप्रूव कर दे तो मैं करता हूँ। उन्होंने कहा है कि ये तुम्हारी जर्नी है, यू विल फॉल, यू विल राइज, यू विल डू गुड, यू विल डू बैड, बट तुम्हें खुद करना है, बिकॉज यू हैव टू मेक योर ओन आइडेंटिटी। यू आर माई सन, बट यू ऑल्सो हैव टू बी महाक्षय। तो सिलेक्शन प्रोसेस इज माइन अलोन। प्रोड्यूसर साहब और म्यूजिक डायरेक्टर से पूछना चाहिए कितना मुश्किल होगा, क्योंकि ये पूरी फिल्म है म्यूजिक के ऊपर है, म्यूजिक से काफ़ी लोग अट्रैक्ट होंगे, तो कितना प्रेशर है आप लोगों पे कि अच्छा म्यूजिक देना है? थैंक गॉड कि राजेश जी इज़ ए वेरी म्यूजिकल ईयर्स हैं उनके, और कभी भी इस बार की कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई हमें। गाने बनते गए और वो गानों के साथ इंस्पायर करते गए हमें। तो गाने जब बने उसके बाद मेरे को लगता है कि सबसे बेस्ट पार्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पहला गाना था, फिर राजेश जी और हम पूरी टीम कुमार सब ने बैठ के सोचा कि अब गवाएंगे इससे, तो अरिजीत सिंह जी आए। अरिजीत जी तब तक वो आशिकी के गाने आ गए थे, बट आई रियली लव हिम कि जब वो स्टूडियो आए तो ही वॉज सो सिंपल एंड हम्बल। वो 3 व्हीलर से आए थे और अंदर आगे कम से कम 3.5 घंटे तक इस गाने को उन्होंने टाइम दिया, और लास्ट में एवरीबडी वॉज स्टन की जो जिस तरीके से उन्होंने गाया है। मेरे को लगता है हमारी लाइफ का ये बेस्ट सॉन्ग उन्होंने दिया है हमारे। सर मैंने काउंट नहीं किया, मैं लिखता जा रहा हूँ, मैं सफ़र में हूँ, पहुँचना मुझे कहीं भी नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, गाने बहुत बनते हैं, रोज़ हम गाना बनाते हैं, रोज़ धुन बनती है, रोज़ हम गीत लिखते हैं, लेकिन राइट गाना पिक्चर के लिए सिलेक्ट करना बहुत बड़ी बात है। तो राजेश भाई ने वो गाना सेलेक्ट किया जुदा, तो अनुराग बेदी जी के जो हेड है उन्होंने मुझे फ़ोन किया, यार ये क्या कर दिया, तो क्लब सॉन्ग लिखते ये रोमांटिक गाना कहाँ से आ गया तेरी लाइफ में। तो राइट सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिल्म एक्चुअली। थैंक यू वेरी मच। लर्निंग हिंदी? Of course I'm learning Hindi. I've done now 8 films. So I have to learn Hindi. And I hope if you ask my co-actors if my Hindi is fine enough to play the lead role in a film, which is a very chatty character by the way, then I hope I've learned now. Can you speak Hindi? मैं हिंदी बोल कर सकती कोशिश है सर, कोशिश है। थैंक यू। लेकिन ग्रामर थोड़ा मुश्किल है। मीमो के साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा, बताइए? It was very good working with Mimo Mahakshay, and I think we've grown very close as friends during this whole process of almost 2 years when Ishkadariya came to us through Rajesh ji, and of course I remember many things which we have worked together in front of the camera, but I think later on you always remember more the offset stories and the pranks you've played on each other. So I kind of remember these things more than the working. Yeah, you can see how we work together on 15th of May. Actually, a lot of people, a lot of friends have come here to wish us, and I really want to thank all of them. Yes, And one of thank my you. one of my oldest friend,
who is one of the leading cameramen of Indian industry. Ravi K. Chandran is also here. Ravi, show. Yeah. Sachin sir, I just worked with a film called Shutter in Marathi, so he's also there. And all my Suresh Pai and Ravi Kemu has acted in our film. And Ravi Kemu and we go a long way because we studied in the theatre school together. So we're all, all friends. That's what I said. When friends get together, it'll be a positive film. Thank you. So once again, thank you so much to all of you. Thanks to all the team of Ishq Darya. And I request everyone, please join us for the refreshments outside. So once again. मिथुन जी का ये है, मैं जानता हूँ घर में बैठते नहीं थे कभी। सो एंड सो मेरी एक शूटिंग में उनको जॉन्डिस था, तो वो जॉन्डिस में शूटिंग करने आ गए थे। तो उनकी थोड़ा आई थिंक उनकी जो बैक में थोड़ा पेन है, तो वो नहीं आ सकते होंगे। अदरवाइज़ उनको तो घर में बैठना अच्छा नहीं लगता। मेरी अपनी फिल्म एडवेंचर्स ऑफ टार्ज़न मैंने 3D में आई एम स्टार्टिंग अगेन विद बिग नेशनल गेम। आई एम प्लानिंग इन द प्लानिंग स्टेज एंड एडवेंचर टार्ज़न में एक्चुअली आई मेड वन फिल्म एडवेंचर टार्ज़न इन 85 with Hemant Birji and Kimi Karkar, which was a big hit. So this I am doing in today's times and today's technique. So very soon that it should be done. That is in going on. अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ, बिकॉज उसमें भी क्या था, ड्यूरिंग माई दैट एडवेंचर ऑफ टार्ज़न बहुत स्टार जो थे वो दे वांटेड टू प्ले, तो काफ़ी लोग फ़ोन भी करते थे। उस टाइम थोड़ा मैं एकदम टॉप फॉर्म में था, आई वॉज वेरी बिग हिट। बट आई फेल्ट के व्हेन टार्ज़न अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, तो ही शुड लुक लाइक अ टार्ज़न, he should not look like any actor, man he should be new and the audience should feel he's a Tarzan. बहुत अच्छी he is Mimo is such a lovely person, a lovely boy, तो उसके लिए तो blessing है, सबकी blessing होनी चाहिए, because he's such a cute animal। और this film he has done very well. He's his performance, his look, everything is different. So I am sure that this film should be a big hit. लोग कहते हैं कि उनकी कुछ फिल्में नहीं चली है, लेकिन कई बड़े अमिताभ बच्चन की भी पहले फिल्में नहीं चली थी, तो he should make a big hit in this film. Thank you.